آج آپ کو مختلف ایشوز پر بات کریں گے. میں جو آپ سے مخاطب ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رسپانس جو کل غلام سرور خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ایویشن کے، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے پارلیمنٹ میں، اس حوالے سے ہم اپنا ریئیکشن دیں گے. اب یہ بالکل میں مانتی ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو پیش رفت ہے کہ ایک رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن رپورٹ کیا پیش کی گئی ہے اور رپورٹ کس طریقے سے پیش کی گئی ہے اور رپورٹ کے اثرات اداروں پہ کیا ہوں گے، ملک پہ کیا ہوگا، ایویشن پر کیا ہوں گے، اس پر بہت تشویش ہے ہمیں. کل سارا دن جو میڈیا پہ جس طریقے سے رپورٹس چلی ہیں، جس طریقے سے وزیر کو کوٹ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس ملک کے پریشس ہیومن ریسورسز ہیں اس پر جیسے سوالات اٹھائے ہیں، تو لگتا ہے ہم نے اپنے آپ کو گالی دی ہے جو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. اب اس رپورٹ کو ہم اس حوالے سے مسترد کرتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کے جس طریقے سے پورا فرام ڈے 1 ٹو ٹوڈے جس طریقے سے اس سارے کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس میں بہت تشویش ہے. فیس بک پہ جو اس کا رد عمل ہے، ٹویٹر پر رد عمل ہے، عوام کا رد عمل ہے، میڈیا پر بھی جو رد عمل ہے، سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جو اس رپورٹ میں ملبہ ڈالا گیا ہے وہ ایک کپتان کے اوپر ہے. لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کپتان کون سا؟ اس ملک میں اس رپورٹ کے حوالے سے 2 کپتان ہو سکتے ہیں. ایک کپتان جو ملک کا وزیر اعظم ہے، فارمر کرکٹر، فارمر کیپٹن ہے، اور ایک کپتان جو ہے وہ پی آئی اے کا پائلٹ ہے جو اس وقت لیڈ کر رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 97 قیمتی جانیں گئی ہیں، اور اگر ہم ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ہمیں ان جانوں کا احترام کرنا ہے. اور انویسٹیگیشن بہت حساس معاملہ ہے، اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں مقصد یہ ہونا چاہیے انویسٹیگیشن کا کہ اس کے نتیجے میں ادارے اور اس کو میرے خیال سے بند ہی کر دیں. مقصد انویسٹیگیشن کا یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو، ادارے بنے اور بلیم گیم نہ ہو. لگتا ہے کہ اس پوری رپورٹ میں ہمیں اور جو ریاکشن آیا ہے، تو اس میں ایک بدلے کی بو آ رہی ہے اور اس میں بدنیتی کی بھی بو آ رہی ہے. اس گورنمنٹ میں جو کپتان ہیں گورنمنٹ کے، وہ تھرو آؤٹ اپنے کریئر میں یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر حادثات ہوں تو اس پہ جو ذمہ داران ہیں ٹاپ والے، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور وہ ساؤتھ کوریا کا بار بار مثال دیتے تھے کہ اگر اس میں ایک چھوٹی سی کشتی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو تو وزیر اعظم نے مستعفی ہوتے ہیں. ساؤتھ کوریا میں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. تو اس اصول کے مطابق جو مستعفی ہونے چاہیے اس حادثے کے بعد، وہ تو خود کپتان جو کرکٹر کپتان ہے اس کو مستعفی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ان کے وزیر ہیں ان کو مستعفی ہونا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے رپورٹ انہوں نے لکھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وداؤٹ بلیم گیم، یا جس طریقے سے انہوں نے جو کیپٹنز ہیں یا جو پائلٹس ہیں ان کی ایک تذلیل کی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ کمیٹی میں جانی چاہیے تھی اور اس میں وہ ڈیلیبریٹ ہوتا. لیکن جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے کئی قدم آگے بڑھ گئے. انہوں نے پائلٹ ایرر ہو سکتا ہے ہم کسی بھی حوالے سے اس رپورٹ کے کانٹینٹ کو ڈیٹیل نہیں بنانا چاہتے جب تک ہم ٹیکنیکلی اس کو ایویلویٹ نہ کریں. لیکن انہوں نے جس طریقے سے رپورٹ لکھی، انہوں نے خود جو ایئر سیفٹی کے انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی دھجیاں بکھیڑی. انہوں نے جو سی وی آر ہے، جو فلائٹ ریکارڈر ہے،
उसकी रिकॉर्डिंग कैसे उन्होंने सुनी है, क्या वो एंटाइटल्ड हैं अंडर द इंटरनेशनल लॉ कि वो फ्लाइट रिकॉर्डर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुने और उसको आके कोट करें, उसके आगे बताएं कि कोरोना पर पायलट्स ने डिस्कस की है, पायलट्स की जातियात जाती कैफियत के ऊपर ये बात करें, क्या वो अहल हैं? और उसके बाद जो बहुत हैरत अंगेज बात है वो ये कहते हैं, और शॉकिंग बात है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 294 पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंसेस जो हैं वो मशकूक हैं। जब वो ये बात कहते हैं तो दूसरे दिन एक लेटर आता है सीईओ का जिसको खुद हैरत है कि 295 लाइसेंसेस जो हैं वो मशकूक हैं, जिनमें से 150 पीआईए के हैं और हमें वो नाम बताया जाए। तो दैट मीन्स ना सिविल एविएशन अथॉरिटी को वो नाम पता है, न पीआईए के सीईओ को नाम पता है और मिनिस्टर साहब को पता है। तो हमारा ये मेजर सवाल है मिनिस्टर के ऊपर कि ये उनके पास ये कैसे इंफॉर्मेशन आई जो जिम्मेदार लोग हैं उनको नहीं पता। तो इस बुनियाद पर कि ही हैज गिवन अ फॉल्स इंफॉर्मेशन बज़ाहिर, जिसकी बुनियादें जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, न कोई तहकीक हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन उन्होंने कैसे ले की है। तो उनको सिर्फ उस बुनियाद पर, और उन्होंने जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं कि इस किस्म की हसास रिपोर्टों के हवाले से कैसे बात की जाए, इनकी उन्होंने धज्जियां बखेड़ी हैं और खुद उन्होंने अपने ही इदारों को इंटरनेशनली उन्होंने बदनाम किया है इन 3 नुक्तों पर। और चौथा नुक्ता, खुद वजीर साहब खुद अहल हैं। वजीर साहब शोर मचाते रहे हैं लास्ट पार्लियामेंट में क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर जाली डिग्री का केस था, और जाली डिग्री का केस में एचईसी ने कहा था कि इनकी खुद की डिग्री जाली है। जो पीआईए के पायलट्स की लाइसेंसेस को चैलेंज कर रहे हैं वो खुद जाली डिग्री का केस मुकदमा भुगत चुके हैं और उसमें मुतनाजा है वो भी अभी तक। तो वो शख्स ये अहलियत रखे कि वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे जिनका कोई लीगल बेसिस नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस रिपोर्ट को तो रिजेक्ट करती है, इस इन्वेस्टिगेशन को, और कहती है कि बदनीयती और बदले पर मबनी है। लेकिन जो वजीर साहब हैं खुद उनके बकौल और उनके जो उसूलों के बगैर भी डिमांड कि वो मुस्तफी हों। अब 4-5 नुक्ते हैं जो जरूरी हैं इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पूछना। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन से कानून और लीगल एंटिटी के तहत हो रही है। पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड हुआ करता था, अब ये एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया है। किस कानून ने उसको बनाया गया है, कैसे बनाया ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन? मुझे नहीं याद कि हमने इसको पास किया है, और वो सिविल एविएशन से निकाल के कहीं डायरेक्ट एविएशन की मिनिस्ट्री में दे दिया है। ये चीज कैसे बनी, कब बनी? तो द वेरी क्वेश्चन इज कि आपने ये जो इन्वेस्टिगेशन की है कौन से कानून के तहत आपने ये कमेटी बनाई है? जो कमेटी बनी है उसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि जो इसमें आउट ऑफ द 4 जो हैं लोग, 3 फॉर्मर एयरफोर्स के कैप्टन हैं। तो इसमें व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्या उनके पास वो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिफिकेशंस हैं? क्या वो एक्सपर्ट्स हैं इस एयरक्राफ्ट में कि वो इस हवाले से अहल हों? तो इस पर भी बहुत बड़े सवाल है। क्या प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशन के फॉलो हुए हैं? इस पर भी बहुत बड़े सवाल हैं। इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक एक तनाजा चल रहा है पीआईए में और सिविल एविएशन में, जिसमें एक तरफ पायलट्स हैं और दूसरी तरफ एयरफोर्स के फॉर्मर एयरफोर्स के लोग हैं। जब इस किस्म का फ्यूड चले और उस पस मंजर में आप रिपोर्ट लेके आए जो एक बॉडी को, एक कलेक्टिवली पायलट्स को ब्लेम करे, तो क्या वो इदारे को हेल्प करेगा? क्या वो पीआईए को हेल्प करेगा? क्या वो सिविल एविएशन को हेल्प करेगा? और अगर आप इन पायलट्स पर सवाल है कि इतने ज्यादा तादाद में वो पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंसेस मशकूक हैं, तो उनको लाइसेंसेस किसने दिए? उनके ऊपर कौन कौन सा आपने एक्शन किया?
लाइसेंसिंग इशूइंग अथॉरिटी इज सिविल एविएशन। जो हमें पता है जो लाइसेंसेस इशू हुए हैं वो उनके सिग्नेचर्स से हुए हैं। क्या आपने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? और एक बहुत ही शॉकिंग बात जो खुद वजीर आजम है, जो खुद वजीर जो एविएशन के, उन्होंने ही स्पिल्ड द बीन्स। वो कहते हैं कि पायलट जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कोरोना वायरस के ऊपर। अप्रैल में इंटरनेशनल जो पायलट एसोसिएशन है उन्होंने ये इंकशाफ किया कि कोविड-19 की वजह से फ्लाइट्स जो कैप्टन्स हैं और जो पायलट्स हैं वो अंडर सिवियर स्ट्रेस में हैं, तो इट विल कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्लाइट सेफ्टी। हमें ये पता है कि तसलसल से पीआईए में जो कैप्टन्स हैं जो फ्लाइट चला रहे थे दे वर अंडर स्ट्रेस, और वो ये बार बार कह रहे थे कि सेफ्टी रूल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो आपकी पीआईए मैनेजमेंट पर आ रहा है कि क्या डिड दे इंश्योर के एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। एक तसलसल से पायलट्स एक आध दफा उन्होंने शायद प्रोटेस्ट भी किया है कि हमें किट्स नहीं मिली हैं, हमें वो टाइम नहीं दिया जा रहा, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, और वो जो क्वारंटीन का टाइम है वो क्वारंटीन का टाइम नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये सारे रूल्स, क्या अगर ये खुद आपने, जो आपको ये बात नहीं कहनी थी उस वक्त, क्योंकि मिनिस्टर इज नॉट ऑथराइज टू रिपीट के रिकॉर्डिंग में क्या चाह रहा था, लेकिन आपने सारी कौम को बताया है, तो इससे तो आपने यही साबित किया है कि पायलट्स वर अंडर स्ट्रेस इफ दे वर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस। बहरहाल ये हम बिल्कुल नहीं क्वेश्चन कर रहे कि किसका एरर है किसका नहीं एरर है। हमारे सवालात ये हैं कि अगर ये फेलियर है तो इसका अजाला ऐसे नहीं होना कि आप एक हल्के एक पार्टी एक ग्रुप को ब्लेम करके और आप अपने आप को गाली दें। इसमें हर लेवल पर कहीं ना कहीं अगर फेलियर्स हैं तो उसके अजाले होने चाहिए, और ये तरीका नहीं है कि आप 30 दिन के बाद वापस आकर आप 1/4 पायलट्स को आप अगर क्वेश्चनेबल बना लेंगे तो आपकी एयरलाइंस चलेगी। और आपने जो आपका सिविल एविएशन का इदारा है, इंटरनेशनली इट विल फॉल इनटू डिसरिप्यूट। इस वक्त भी उसकी दुनिया में रेटिंग एट द बॉटम है, और उसके बाद जब आप उसको और डिसरिप्यूट में करेंगे तो आप इंटरनेशनली अपनी एयरलाइन को भी डिग्रेड कर रहे हैं और अपनी आप सिविल एविएशन को भी डिग्रेड कर रहे हैं। और जहां तक डिग्रीज की बात है कि सिविल एविएशन के जो सीनियर तरीन फ्लाइट रेगुलेशन के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने वो खुद फेक डॉक्यूमेंट्स पर, अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, वो फेक डॉक्यूमेंट्स पर टर्मिनेट हो चुके हैं, उनको अपनी सीनियोरिटी बहाल करके फिर से वो ओहदा दिया है। लेकिन हम इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ रहे। हम ये चाहते हैं कि आप इस कोरोना वायरस के टाइम पर अपने जो मुलाजिम हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका ख्याल करें, ब्लेम गेम ना करें। अगर लाइसेंसेस में मसले हैं तो आप बिल्कुल पेनल्टीज दें, लेकिन आप रास्ता भी निकालें कि आपकी एयरलाइन में इस वक्त जो स्ट्रेस है, आपको पता नहीं कितने हजार ओवरसीज लोग लेके आने हैं, और इस वक्त आपने पूरा के पूरा मलबा न सिर्फ एक पायलट पर, लेकिन पूरा पायलट्स के जितना भी आपका सिस्टम है उसके ऊपर आपने ब्लेम डाल दिया है। विच पायलट वुड लाइक टू फ्लाई इन अ रिलैक्स्ड वे टुडे फॉर पाकिस्तान एयरलाइंस? तो आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, अपने इदारे को डैमेज कर रहे हैं, अपने मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। और क्योंकि ये कंटेनर वायरस वाली पार्टी इस वक्त मुल्क पे सवार है, तो इन्होंने शायद ये अहद कर लिया है कि जब तक हम हर इदारे को तबाह ना करें, हर आईनी इदारे, वो पार्लियामेंट हो, वो ईसीपी हो, वो जुडिशरी हो, जब तक हम, और अब आप पीआईए और सिविल एविएशन के ऊपर आ गए, जब तक हम हर इदारे को तबाह नहीं करें शायद ये सुक्का सांस जो है वो नहीं लेंगे। तो ये मेरी गुजारिशात थी। अब मैं चाहूंगी कि इस वक्त मैं एक और बात करूंगी कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसको सियासी बना रहे हैं, यूनियंस पर आ रहे हैं कि ये यूनियंस में फलां एम्प्लॉयज, अगर यूनियन ने एम्प्लॉय किए हैं तो आपके पहली बात तो यूनियन ने एम्प्लॉय नहीं किए हैं। पीपल्स पार्टी में जो लोग एम्प्लॉय हुए हैं बहुत ही छोटे ग्रेड में, कोई बड़े बड़े ग्रेड के नहीं एम्प्लॉय किए गए लोग। असल क्वेश्चन ये है कि सारा मैनेजमेंट का उसूल टॉप डाउन पे चल रहा है। क्या आपके जो टॉप अहलकार हैं वो मेरिट पर एम्प्लॉय हुए?
آج آپ کا جو سول CEO ہے ہی از انڈر لٹیگیشن, وہ کورٹ کی حاضریاں کاٹ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس سول ایویشن اتھارٹی میں DG نہیں ہے 2 سال کا, پھر آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں ایک پائلٹ پر ڈال کے؟ تو اس لیے یہ بہت ہی کوشچنبل ہے سارا سلسلہ, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. تو اس میں اگر ایک شخص جس کو ریزائن کرنا ہے تو وہ جو ملک میں کپتان جو لگایا ہوا ہے سلیکٹڈ, اس کو ریزائن کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ سرور خان صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اور PIA ہے ان کو ذمہ داری لینے چاہیے. تھینک یو. آپ ابھی پلوشا خان صاحبہ کچھ بات کریں گے, آ جائیں. اسی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے. سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے, آپ کے علم میں بھی ہے ہمارے علم میں بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دھمکی آمیز مواد ان کے گھر پہنچایا گیا ہے, جس میں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. تو ریاست مدینہ چلانے والوں کو یہ علم نہیں کہ ریاست مدینہ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے جو قاضی ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں وہ جگہ جگہ اپنی انصاف کے لیے جو ہے ٹکرے مار رہے ہیں. اور اس قسم کی دھمکیوں کی آڑ میں یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں ہے, آپ نے بھی دیکھی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں, کچھ سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں. اس میں لپیٹ میں لے لیا گیا ہے وزیر اعظم 3 دفعہ جو رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب جو اس ملک کے صدر رہے ہیں, اور تمام جوڈیشری کے ججز کو ان کے لیے غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام دھمکیوں کی مذمت کرتی ہے اور یاد کراتی ہے کہ اسی گھر سے جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت کی معزول عدلیہ کے حق میں نعرہ بلند کیا تھا اور بلوچستان ہاؤس جانے کی کوشش کی تھی جو اس وقت کے آمر نے بلاک کی تھی. تو یہ یاد دہانی رہے کہ آج ان کا بیٹا جو ہے وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, اور ایسی کوئی کوشش ہوئی تو سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی. دوسری بات, ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ کون شخص ہیں جو دھڑلے سے کسی خوف و خطر کے کو چھوڑ کر یہ اپنی ویڈیوز جو ہیں یہ وائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اس پر کوئی مشینری حرکت نہیں آ رہی, ریاست مدینہ سو رہی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ جب اس ملک کی معیشت کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور اس کا جنازہ جو اسمبلی میں یہ بجٹ کی صورت میں پڑھا رہے ہیں وہ پڑھایا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم 4 لوگ گن کے 4 لوگ کھڑے ہیں, اور وزیر اعظم ان کو کھڑے ہو کر کرونا ٹائیگرز ہیں یا وہ کیا چیز ہیں ان کو وہ بھاشن دے رہے ہیں. اور وہاں معیشت کو جو ڈبو آئے ہیں اور معیشت کا جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, کم از کم جا کے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تو جاؤ. آج یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے بحث کو, کتنے دن وزیر اعظم وہاں گئے ہیں, ممبر کھڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں, کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں. کیا ہم اتنا لاوارث ملک ہیں؟ ویسے بھی جب ٹائیگرز ہوں اور عمران نیازی ہو نیازی ان کی اوپر آ جائیں ان کو لیڈ کرنے کے لیے, تو ملک کے لیے بہت برا شگون ہے. آپ یاد کر لیجئے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. بدقسمتی کی ایک جو ہے نا تاریخ رقم ہو رہی ہے اس ملک میں. گھروں میں جن کو آپ نے آئسولیٹ کیا, ان کو کہا آپ گھروں میں رہیں, وہ ایک سلنڈر کے پیچھے ان کے لواحقین بھاگتے رہے آکسیجن کے, وہ ایک سانس کے لیے تڑپتے رہے, اور کتنے جو ہیں ان میں سے وہ وفات پا گئے. کسی کی کان پہ جوں رینگی, آپ کھڑے ہو کے کس منہ سے کہتے ہیں میرا ویژن ہے؟ کون سا ویژن؟ یہ ابلیس کا ویژن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو دھکا مار کے قبر میں اتارو, یہ کسی پاکستانی حکمران کا ویژن نہیں ہو سکتا. کس ویژن کی ابھی بھی ان کا ایک وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے ویژن کو دنیا کاپی کرتی ہے. میں پوچھتی ہوں, نیو یارک کا میئر آپ کا ویژن کاپی کرتا ہے, بھارت اور سعودی عربیہ آپ کا ویژن کاپی نہیں کرتے.
कॉपी करती हैं। अगर कोई इम्प्रेस नहीं होता तो आपके अपने वुज़राए आला नहीं होते, वो आपकी बात नहीं सुनते। आपका विजन यही है कि लोगों को कब्र तक पहुंचाओ। सिर्फ वो एक बात जिस पर इस वजीर आजम ने यू टर्न नहीं लिया और पक्का डटा रहा कि मैं इनको रुलाऊंगा अवाम के लिए, और दूसरी बात कि सुकून कब्र में है। आज इसने 21-22 करोड़ अवाम को लाके कब्रों के दहाने खड़ा कर दिए। इससे ज्यादा बेबसी की मौत क्या है कि आप घर पड़े मर जाए, न अस्पताल जा सके, न कोई आप तक आ सके, न कोई आपको दफना सके, और ये आराम से बैठे अपने विजन की तारीफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर पोल करा रहे हैं कि क्या मैं लॉकडाउन करूं या ना करूं। ये मजाक है, ये बनाना रिपब्लिक है, ये क्या है। काजियों को धमकियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां दी जा रही हैं, और ये आराम से बैठे हैं 4 लोगों के सामने फोटो सेशन करा रहे हैं। फिर इसी वबा के दौरान सिंध का दौरा करने का इनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। सिंध जाते हैं और कहते हैं छाबड़ी वाले को उससे क्यों बंद किया। मेरे दिल में, बिलावल साहब के दिल में तो कोई इनका दुख नहीं है गरीबों का। आपके दिल में, जिनके दिल में दुख था, जो यहां से सिंध तक गए, वो वहां बजाय कि किसी डॉक्टर, मरीज, किसी नर्स, किसी वर्कर, किसी से मिल लेते, किसी छाबड़ी वाले से ही मिल लेते सड़क के किनारे गाड़ी रोक के, वो 135 किस्म के खानों पर हाथ साफ करते रहे। सालिम मुर्गे, सालिम बकरे, मुर्गाबियां, हिरन, ये है इनका विजन, और ये है गरीब का दुख। और गरीब का दुख तो उस वक्त सामने आया जब वापसी पर किसी छाबड़े वाले की किस्मत तो ना जागी, अकील करीम डैडी की किस्मत जाग गई। वो उन्होंने इसको आते ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मेंबर लगा दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, ये जो आपका और जुल्फी बुखारी का विजन था, कोरोना के हवाले से इस मुल्क को तबाही के लिहाने पे ले आया। मईशत के हवाले से आज हमारी 1% ग्रोथ IMF ने कही है कि है। आपके वुज़रा, आपके मुशीर अपने असासे दिखाने से कासिर हैं। कौन है ये लोग जो अदलिया के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं? कौन है लोग जो बाहर के मुल्कों से आए हैं? आपके अपने बैठे हुए वुज़रा इनको पहचानने से कासिर हैं। और जब ये सब हो रहा है, आपके वुज़रा आपस में गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के गालम गलोच करें काबीना की मीटिंग्स में आकर। उस वक्त जब 2 लाख लोग बीमार हैं, जब सांस सांस को लोग तरस रहे हैं, उस वक्त जब 4000 के करीब लाशें गिर चुकी हैं, उस वक्त जब बाकी बैठे हुए आप और हम जैसे लोग अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि ये जो लोग मर गए हैं, इनका खून किसके जिम्मे है? ये किस पे FIR कटाए? होना तो ये चाहिए कि ये FIR रवायकीन जाकर कत्ले अमद के जुमरे में जुल्फी बुखारी और इमरान खान पर कटाए। इंसाफ का तकाजा तो यही है, और रियासत मदीना का इंसाफ भी यही कहता है कि जिस तरीके से लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, ये लॉकडाउन इतना ही स्मार्ट है जितना ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट है और उसकी काबीना स्मार्ट है, जो जहालत के अड्डे हैं, जहां से आप रोज इस माहौल में भी जहालत की नदियां बहती हैं उनके मुंह से। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इमरान खान साहब, आप इमरान खान बने, आप कंटेनर पर ही खड़े रहे, आप लाशों के मीनार पर ना खड़े हो, आप चंगेज खान बनने की कोशिश ना करें। ये याद रखें कि आप जिनको इतनी भेड़ बकरियां समझते हैं, जहां सिंध में जाके आप कहते थे ये तो भेड़ बकरियां हैं, गुलाम हैं, सिंध का क्या कसूर है आज के सारी वफाकी हुकूमत की तमाम तर रिसोर्सेज और फोर्सेस सिंध के खिलाफ जो है महाजर आए, इसलिए कि सिंध ने आपकी बातें सुनकर वोट नहीं दिया। आपने जो मुंह में आया उनको कहा, वो आपसे इंप्रेस नहीं हुए, आपके विजन से इंप्रेस नहीं हुए। सिंध का सिर्फ इतना कसूर है। मैं आखिर में ये कहूंगी कि वफाक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की एक घनौनी साजिश इस वक्त हो रही है। इस साजिश में यह हुकूमत शामिल है। वफाक पाकिस्तान की जिम्मेदारी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आईन पाकिस्तान देकर दी थी। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि ये जो वज़रा और मुशीरान की फौज है जो एक दूसरे के दस्तों गिरबान है, यानी कि वजीर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो मेंबरान हैं उठ के वो वजीरों से लड़ रहे हैं, और बाकी जो कौम बीमार है या सांसों को तरस रही है, वो किसकी तरफ देखे? जरा आप आपस में लड़ने से फुर्सत हो तो इस तरफ भी देख लें कि ये कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग मरने वाले हैं। ये तमाम लोग
किसी दिन भी आप सुनेंगे ये रातों रात यहाँ से भाग जाएंगे। लिहाजा हम ये डिमांड करते हैं कि इनके नाम ECL में डाले जाएं ताकि ये जवाबदेही के बगैर न भाग सके। आज राजा परवेज अशरफ साहब बाइज्जत बरी हुए हैं। कहाँ है वो लोग जो उनको राजा रेंटल कहते थे? क्यों ताले लगे हैं अभी इनके मुंहों को? क्यों ताले लगे हैं इमरान खान के मुंह को और हुकूमत के मुंह को? आपका एक बंदा भी कोई कार्रवाई भुगतने से जो है वो कासिर है? कोई एक भी है जो जाना चाहता है? मगर आपका ये चूरन जो आप रोज बेच रहे हैं ना, ये उसी दिन खत्म होगा जब अवाम प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फैलाएगी। और ये मैं ज्यादा दूर नहीं देख रही, अवाम भी फैलाएगी, वकील भी फैलाएंगे और इंशाल्लाह हम सबसे आगे वाली सफ में होंगे। बहुत शुक्रिया।